Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. First of all, a very happy Diwali to you and to your family. I hope this festival of lights bring a lot of brightness into your life and a lot of happiness. And as you know that this is a festival which is celebrated the most in India, and this is something, a time of happiness which you should spend with your family. So all of you are requested to kindly give a break to the technologies, to the gadgets you use on regular basis. Kindly give a break to the stock market as well, because market will remain forever, but this time won't come again, at least not before 1 year, right? So the most important priority at this time should be your family. But I am making this video because most of you requested me to make some video of some special breakout trades which we can take at the time of Muhurat trading. So I have prepared this video containing 12 trades in which a good breakout is happening or has happened or will happen. I'll be sharing the reasons for taking every 12 stocks. Before that, discussing those 12 stocks, I'll be also discussing all the indices. जितने भी इंडेक्स हैं हमारे, चाहे वो रियलिटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, कमोडिटी, इंफ्रा, एनर्जी, आईटी, whatever sector it is, I'll be explaining you that which sector seems bullish right now and which is not bullish and which is bearish. ठीक है. So apart from stocks, हर एक सेक्टर का एनालिसिस रहने वाला है इस वीडियो के अंदर. तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड अगर आपको यहाँ पे नॉलेज ना मिली तो आप उसको अनसब्सक्राइब भी दोबारा कर सकते हो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग all the indexes and then the 12 special stocks breakout trades. So kindly be with us till the end and keep liking the video. So the first sector which is on the screen you can see is the Nifty Realty sector. We will be discussing the daily time frame only in every case. As you can see that the movement of the stock, the movement of the sector, that whenever the stock moves up, it creates a pullback, a healthy pullback, right? Every time it creates a move up, it creates a healthy move up, pullback for a further move on the upside. As you can see that recently a pullback has been completed and it has started moving up. So we can see this history repeating, that is creation of a new high somewhere over here. So Nifty Realty seems to be very bullish right now. Realty के जितने भी stocks हैं आप उनको pick कर सकते हो खुद अपने लेवल पर और देख सकते हो किसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि ये कोई आपको ट्रेडिंग टिप नहीं है, ट्रेडिंग एनालिसिस नहीं है आप लोगों के लिए. दिस इज जस्ट अ स्टडी पर्पस एनालिसिस, नॉट अ ट्रेडिंग टिप. ठीक है, तो इसको आप टिप की तरह मत लेना, इसे आप एक कॉल की तरह मत लेना. ना ही मैं कॉल दे रहा हूं, ना ही मैं टिप्स दे रहा हूं आपको. दिस इज जस्ट अ प्योर एनालिसिस विच इज फॉर योर एजुकेशनल पर्पसेस. एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एज वेल, सो मेरी कोई भी ट्रेड, मेरा कोई भी एनालिसिस आपके लिए टिप्स नहीं रहेगा. तो फर्स्ट इज निफ्टी रियलिटी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये हमें बुलिश दिख रहा है, तो दिस स्टॉक इज बुलिश फॉर अस, दिस इंडेक्स इज बुलिश फॉर अस. आप इसमें से इसके विनर्स को चूज कर सकते हो मार्केट में से जो जो इसके इंडेक्स के अंदर हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज metal sector. As you can see, I have already drawn some of the trend lines so that it saves your time as well while watching this video. You can see it over here. It gave a breakout of this triangle pattern, a symmetrical triangle pattern, but the breakout failed. And we can again see that it has got into the symmetrical triangle. But the range over here, the range which was so big over here has shrinked and reduced to a very small range. So we can very surely, very soon find a breakout on the upside. And when this sector becomes bullish, right now it's sideways, not bullish. When this sector becomes bullish, we can start finding opportunity from this sector as well. So this is a sideways sector for us. Nifty Realty was bullish. This is sideways. S for sideways, right? Now let us move to the next sector. That is Nifty Commodity. As you can see that every time in every index, in every share, you will see this phenomenon which is very common, that every time after a push phase, there is a pullback in an uptrend. After a push phase, there is a pullback, then a push phase, then a pullback. Similarly, we can see that a push phase has been completed and a pullback also seems to be completed. Why it seems to be? Because after a pullback, a small consolidation has started to happen. It has created a base over here. So
when this area will be broken, somewhere around this area, this level will be broken, then again an uptrend will be started in Nifty commodity sector. हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां पर ये ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा. If it crosses 5900 or we can say 5910, then it will be again bullish and at least इसका टारगेट रहेगा 6239. So right now it is in consolidation और a sideways movement, लेकिन मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल बता दिया. अगर इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाता है तो ये दोबारा से बुलिश हो जाएगा. So this is sideways for us, that is S. Now let us move to the next stock, next sector, that is CNX Infra, that is Nifty Infra. आप सिमिलर देख सकते हो. As same to commodities sector, we can see in infra also after a pullback a consolidation is happening. और अगर मैं आपको दिखाऊं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, तो you will find a kind of a triangle pattern forming. ये आप देख सकते हो कि एक triangle pattern formation हो रही है यहाँ पे, like this, somewhere like this, और you can say like this also. ठीक है, तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है. जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये पैटर्न इनवैलिडेट नहीं होगा. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना एंट्री पैरामीटर नहीं होता, हमें हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी ब्रेकआउट चाहिए होता है. आप देख सकते हो यहां पर 2 बार इस सेक्टर ने रेजिस्टेंस फेस की है, तो जब तक इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक निफ्टी इंफ्रा हमारे लिए बुलिश नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो राइट नाउ अ साइडवेज और अ कंसोलिडेटेड पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सीएनएक्स एनर्जी, दैट इज निफ्टी एनर्जी. ठीक है, इसको हम डेली पे देखते हैं. डेली पे देख के हमें समझ आता है कि एनर्जी सेक्टर ने एक काफी बड़ी मूव दी थी हमें इनिशियली. काफी बड़ी मूव देने के बाद इसने एक पुल बैक दिया है. दिस कैन बी प्रॉफिट बुकिंग एज वेल. ठीक है, तो इतनी बड़ी मूव के बाद जब नीचे आए हैं सारे के सारे स्टॉक्स, जब ये भागा होगा तो उसके स्टॉक्स भी सारे भागे होंगे. तो अब उसमें एक पुल बैक चल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है. नाउ लेट अस सी कि ये बुलिश कब से माना जाएगा दोबारा से. तो इसके लिए हम दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे. सो टिल द टाइम इट डज नॉट क्रॉसेस at least this level, we cannot say it is bullish. That is somewhere around more than 22,600. Let us highlight which is this level. ऐसे exactly नहीं दिख रहा है हमें. अगर हम हाईलाइट करें इसको, तो जब तक ये स्टॉक 23680 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये बुलिश नहीं माना जाएगा. अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 24,400 एंड अगर ये भी ब्रेक होता है तो इसका ऑल टाइम हाई दैट इज समवेयर अराउंड 25,200 विल बी द नेक्स्ट टारगेट इन दिस सेक्टर. तो जब भी ये 23,680 को ब्रेक करेगा, आप इस सेक्टर्स के स्टॉक्स ढूंढने शुरू कर देना फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस एंड एक अच्छी एंट्री बना सकते हो. लेकिन मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो की लास्ट में 12 स्टॉक्स ऐसे दूंगा जहां पे एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो बने रहना लास्ट तक. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर ने हमें बहुत अच्छा एक रन अप दिया विदाउट एनी सीरियस रिट्रेसमेंट. भागता गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. लेकिन अब हमें इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेक्टर और एनी स्टॉक. अगर एक स्टॉक इस तरह भागता जाएगा या एक सेक्टर इस तरह भागता जाएगा तो उसमें फॉल भी बहुत बड़ी आएगी. या वो फॉल आएगी या वो उसी जगह पर टाइम स्पेंड करेगा. ठीक है, तो हमें एक टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है. ये कंसोलिडेशन में है, इसे हम साइडवेज कह सकते हैं. सो निफ्टी आईटी में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, तो जो अपने सपोर्ट के बिल्कुल पास होंगे आप वहां पे एंट्री ले सकते हो. टारगेट रखोगे आप उसकी अपर वाली रेजिस्टेंस का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स यू विल फाइंड दैट विल बी फॉर्मिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न. मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल बी इन अ कंसोलिडेशन ओनली. तो डिपेंड आप पे करता है कि आपने सपोर्ट के पास लेके रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या आपने ब्रेकआउट होने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग एंट्री लेनी है. ठीक है, तो निफ्टी आईटी इज राइट नाउ साइडवेज. अभी तक हमें से एक रियलिटी दिखा है जो बुलिश है. निफ्टी आईटी इज राइट नाउ sideways only. Similar kind of pattern we can see, and we can also see that as Nifty 50 is also not moving in a very good direction and it is in a correction phase only. तो सारे के सारे सेक्टर्स का मोस्टली पैटर्न हमें करेक्शन फेज का ही दिखेगा. ठीक है, तो जब तक वो सेक्टर्स अपने प्रीवियस मेजर हाई को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक वो बुलिश नहीं रहेंगे. ठीक है, तो अभी ये फिलहाल एक रिट्रेसमेंट फेज में है. नो डाउट इट्स इन एन अप ट्रेंड. ठीक है, आप इसमें इस सेक्टर्स के कुछ स्टॉक ढूंढ सकते हो जो पीएससी है, इस सेक्टर के आप कुछ स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी ये फिलहाल रिट्रेसमेंट में है. ठीक है,
तो हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, मिड कैप छोड़ देते हैं, निफ्टी देखते हैं। मैंने आपको जैसे बताया अभी कि निफ्टी इज फॉर्मिंग अ रिट्रेसमेंट, एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अप ट्रेंड नहीं खत्म हुआ है। जब तक अप ट्रेंड में प्रीवियस लो, ये वाला लेवल दैट इज अ लेवल ऑफ 17,500, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक अप ट्रेंड ओवर नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग और अ रिट्रेसमेंट आफ्टर दिस बिग मूव। ऐसी रिट्रेसमेंट अगर आप देखो, ऐसी बड़ी रिट्रेसमेंट काफी टाइम से नहीं आई थी सेक्टर के अंदर, दैट इज निफ्टी 50 के अंदर। तो हमें ऐसी रिट्रेसमेंट एक ड्यू थी। दिस इज वेरी नॉर्मल विच वुड हैव हैपेंड एंड इट शुड हैपन इन मार्केट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है। तो जिसको डर लग रहा है निफ्टी 50 को देख के, उसे डरने की जरूरत नहीं है जब तक 17,500 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता। इसको फर्दर एनालाइज करते हैं हम थोड़ा सा। पहले हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है जो एक डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमारा दिखा रही है। तो एटलीस्ट टिल द टाइम दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट ब्रोकन, ये अप ट्रेंड ओवर नहीं, सॉरी डाउन ट्रेंड ओवर नहीं होगा, बिकॉज सेक्टर ने यहां पे एक हाई बनाया है जो प्रीवियस हाई से लो है। एटलीस्ट या तो ये वाला हाई ब्रेक हो या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तभी हम अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, नहीं तो तब तक अप ट्रेंड नहीं शुरू होगा छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी भी निफ्टी बुलिश है। इंट्राडे में आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या आप कह सकते हो कि पोजिशनल में निफ्टी 50 इज स्टिल बुलिश। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं एमएनसी, निफ्टी एमएनसी। इसमें देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। इट इज ऑलरेडी टेकन अ सपोर्ट एंड ये बुलिश है। निफ्टी रियलिटी के बाद आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर। ठीक है, एमएनसी इज बुलिश। आप देख सकते हो कि इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट वाज ड्यू, जो हमें यहां पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसने यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है। तो जब तक ये सेक्टर इस लेवल के नीचे नहीं जाता, मींस डबल बॉटम के नीचे नहीं जाता है, तब तक ये सेक्टर बुलिश रहेगा। ठीक है, एंड आई एम सीइंग अ टारगेट ऑफ दिस एरिया एटलीस्ट, दैट इज 19,600 फर्स्ट एंड दी सेकेंड टारगेट ऑफ 20,000। ठीक है, तो अभी ये बुलिश है, इसमें कुछ घबराने जैसा कुछ नहीं है निफ्टी एमएनसी के अंदर। ठीक है, ये बुलिश है। तो दो सेक्टर हो गए हमारे जो अभी टोटली बुलिश हमें दिख रहे हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज हेल्थ केयर। इसको हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ज्यादा इसमें डेटा नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये कंसोलिडेशन के अंदर है, तो इसे हम अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट इज निफ्टी कंजम्पशन। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इन एवरी स्टॉक। तभी मैं कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो। जब तक ये मूवमेंट चल रहा था तब तक सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जब आई तो सबकी हवा खराब हो गई। लेकिन ऐसा डरने ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर कोई मेजर रिट्रेसमेंट या मेजर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को नहीं मिली थी, जो हमें कंटिन्यूअसली यहां देखने को मिली। लेकिन द गुड पार्ट इज दैट अ कंसोलिडेशन हैज स्टार्टेड एंड एक बेस क्रिएट कर लिया है मार्केट ने। इस पर्टिकुलर सेक्टर ने एक डबल बॉटम बनाकर एक बेस क्रिएट कर लिया है। तो अगर ये इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है 7200 के अबव, देन दिस सेक्टर विल अगेन टर्न बुलिश एंड आप कंजम्पशन सेक्टर में स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तो अभी तक दो हमारे टोटली बुलिश हैं, दैट इज एमएनसी एंड रियलिटी। अगर आपको उसमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो काइंडली गो फॉर इट। द नेक्स्ट इज निफ्टी सर्विस। ये कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। अभी आप देख सकते हो दिस काइंड ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न इज बीइंग फॉर्म्ड। तो जब तक ये असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं इसे टेक्निकल एनालिसिस में, जब तक ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, आप इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना अवॉइड करोगे, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश नहीं मिलेगा, इसमें आपको स्टॉक्स बुलिश मिल सकते हैं, बट बिकॉज द ओवरऑल सेक्टर इज इन कंसोलिडेशन और फॉर्मिंग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सो थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। ठीक है, तो दिस इज निफ्टी सर्विस फॉर यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज पीएसयू बैंक। ये एक और सेक्टर है जो मुझे बुलिश लग रहा है बहुत ज्यादा। आप देख सकते हो कि इसमें एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर में एक डाउन ट्रेंड था। यहां पर आफ्टर डाउन ट्रेंड एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो हैज स्टार्टेड। ठीक है, एक सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो स्टार्ट हो गया है यहां पर। ठीक है, एंड इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। सो पीएसयू सेक्टर के अंदर
काफ़ी अच्छी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसमें कुछ PSU बैंक्स सेलेक्ट करके आपको दिए थे विच आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और जो आज की डेट में हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर ही 20 से 30% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर सेक्टर विच सीम्स टू बी वेरी बुलिश। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक ब्रेकआउट मिला था हमें इस एरिया का। ये एक पर्टिकुलर एरिया था जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम कर रहा था, उस एरिया का हमें ब्रेकआउट मिला एंड रीटेस्ट भी देखने को मिला। तो अगर ये यहां से कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट टारगेट शेल बी 3200 एंड द PSU सेक्टर इज बुलिश राइट नाउ। ठीक है, सो दिस इज PSU सेक्टर फॉर यू। लेट अस मूव टू FMCG। FMCG भी टोटली बेयरिश है। आपको सारे स्टॉक्स, अगर आप बात करो HUL की, डाबर की, आपको सब गिरते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक ये एरिया कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता, बिकॉज एक गिरावट के बाद इसने कंसोलिडेशन फेज में आ गया, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं करता तब तक इसके स्टॉक्स भी बेयरिश ही रहेंगे, फ्लैट टू बेयरिश रहेंगे। ठीक है, बुलिश नहीं रहेंगे तब तक स्टॉक। तो दिस इज इन कंसोलिडेशन फेज। और अगर आपको कंसोलिडेशन फेज को क्लियरली दिखना है तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो कि यहां पे हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑफ डाउन ट्रेंड। हमें यहाँ पे एक ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। सो काइंडली स्टे कॉशियस। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड एंड वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज फार्मा सेक्टर। ठीक है, फार्मा सेक्टर ने एक बहुत बढ़िया रनअप दिया था आफ्टर कोरोना, लेकिन बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, एक साइडवेज मूवमेंट में है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दी फार्मा स्टॉक्स आर इन अ कंसोलिडेशन मूव। ठीक है, बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो भी कंसोलिडेशन में है। तो जब तक ये इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करेगा एंड इस कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं कर देगा, तब तक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में दिक्कत होगी इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, दिस इज इन कंसोलिडेशन फेज एज पर अस, और यू कैन से साइडवेज। ठीक है, तो इसमें अभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेट अस मूव टू द फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर इज बुलिश मोर एंड साइडवेज, बेयरिश नहीं है, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट थी हमारी यहां पर, हेल्दी रिट्रेसमेंट, जिसमें हमें थोड़ी बहुत स्टॉपेज दिख रही है, रुकता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये यहां से कंटिन्यू करता है तो मुझे लगता है कि हमें फाइनेंस सेक्टर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जो कि हमें कुछ बैंक्स में, कुछ NBFCs में देखने को मिल भी रही हैं। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बुलिश टू फ्लैटिश, बुलिश टू साइडवेज, बट मोर ऑफ अ बुलिश सेक्टर राइट नाउ। तो अभी तक 3 हो गए हैं हमारे। वन वाज रियलिटी, देन MNC, देन फाइनेंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो इज क्वाइट बुलिश। उसका रीजन ये है कि यहां पर एक लंबी कंसोलिडेशन थी निफ्टी ऑटो के अंदर। कोई भी स्टॉक नहीं भाग रहा था हमारा निफ्टी ऑटो का, लेकिन एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला एंड एक रीटेस्ट के बाद ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो वी कैन सी अ गुड मूव इन दी ऑटो सेक्टर्स इन दी कमिंग डेज। सो राइट नाउ PSUs एंड ऑटोज एंड रियलिटी आर माई फेवरेट। आपको इनमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक को फॉलो करते हैं तो काइंडली कीप देम इन रडार, बिकॉज आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इन 3 सेक्टर्स के अंदर। लेट अस मूव टू द थर्ड लास्ट, दैट इज निफ्टी मीडिया। इसे फिलहाल के लिए हम अवॉइड करेंगे इस सेक्टर को। रीजन बीइंग एक पैराबोलिक मूव थी एंड उसके बाद कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ना ही टाइम स्पेंडिंग ज्यादा हुई है। तो यहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है एंड इस सेक्टर्स के स्टॉक भी नीचे जा सकते हैं। सो दिस इज एन अवॉइड कैटेगरी फॉर द टाइम बीइंग फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी, ये मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। एंड द लास्ट इज प्राइवेट बैंक्स। आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन एक बहुत टाइम से एक रनअप पेंडिंग था, एक मेजर रेजिस्टेंस थी जिससे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद ये रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है इसी एरिया का, तो हो सकता है कि यहां से हमें फिर से एक बाउंस देखने को मिले एंड द प्राइवेट बैंक्स सच एज द ICICI बैंक, द कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक टर्न्स बुलिश। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो हम इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो तो ये अभी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अभी तक हमारे पास रियलिटी, MNC, PSUs एंड बैंक्स, ये चारों सेक्टर हमारे बुलिश हमें दिख रहे हैं, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप इन 4 सेक्टर्स के स्टॉक को फोकस में रखो एंड इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की
कोशिश करो। Now let us move to the another part of this video, that is the analysis of 12 breakout stocks. So this is very important and interesting. ध्यान से सुनना इसको। ये है वो 12 स्टॉक जिनको मैं आपके साथ एनालाइज करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि इसमें एंट्री हम किस तरह से बना सकते हैं। So the first stock which is very important and very fundamentally strong, fundamentally बहुत strong कंपनी है, and I make it a point कि अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप इन स्टॉक्स में आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे ये एक वीकली टाइम फ्रेम है। एक रनअप के बाद एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई स्टॉक के अंदर, इसके बाद इसने एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया एंड ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर जाने के बाद जब ये डबल बॉटम बनाकर ऊपर गया तो इसकी जो नेकलाइन थी इसने इसका दोबारा से रीटेस्ट लिया एंड आप मूवमेंट देख सकते हो कितनी बढ़िया और कितनी जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक बहुत बुलिश है। ठीक है, हमारी वॉल्यूम बहुत अच्छी आ रही है स्टॉक के अंदर। मैंने इसमें पर्सनली क्वांटिटीज और ऐड की हैं, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज माई स्टडी नॉट अ ट्रेडिंग टिप। लेकिन ये स्टॉक अभी बहुत बुलिश दिख रहा है, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग दिख रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर्पसेस। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका ऑल टाइम हाई, दैट इज समवेयर अराउंड 3770, एंड उसके बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हो जब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं आता। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, जो ये स्विंग लो ऐसे करके बनता है इसके नीचे, बिकॉज अगर इसके नीचे ये ब्रेक डाउन देता है तो ये दोबारा से बेयरिश हो जाएगा या फिर ये साइडवेज हो जाएगा और आपको इससे निकल जाना जरूरी है। बट आई डोंट सी दिस स्टॉक कमिंग डाउन, ये एक न्यू हाई, ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जा रहा है। सो दिस इज अंबर फॉर यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एसोसिएटेड अल्कोहल, अ वेरी गुड फंडामेंटल कंपनी। एसोसिएटेड अल्कोहल अल्कोहल सेक्टर से है, एज द नेम सुजेस्ट। आप देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर ओवरऑल एक अप ट्रेंड में रहने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया था, एंड हम उस कंसोलिडेशन फेज का और इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द बिग वॉल्यूम बार्स, और ये जो वॉल्यूम बार है इसकी इंटायर हिस्ट्री में हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। मैंने इनिशियली ये स्टॉक यहां पे शेयर किया था अराउंड 480, एंड विद इन अ मैटर ऑफ डेज इट टच 640। फिर से हमारे पास इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो कैसे? बिकॉज ये एक मेजर रेजिस्टेंस थी, इसका हमने ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट देखने को मिला हमें, उस एरिया का रीटेस्ट हुआ एंड फिर से एक अच्छी मूव शुरू हो रही है with volume. So this stock also looks promising. Let us see on a weekly time frame हमें क्या दिखाता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे पिक्चर और क्लियर है। सिंपल मूवमेंट ऑलवेज, अ पुश फेज एंड अ पुल बैक, पुश फेज एंड अ पुल बैक। नाउ द पुश फेज इज कमिंग, और एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला है यहाँ पे, एंड कंटिन्यूएशन हो रही है। आप देख सकते हो 3 दिन का ये हफ्ता रहा है, 3 डेज हमें मिले हैं ट्रेडिंग के लिए, एंड उसमें वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस फुल वीक के बराबर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। सो दिस इज अ वेरी बुलिश स्टॉक राइट नाउ, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्रॉम अ गुड सेक्टर। ठीक है, तो दिस इज एसोसिएटेड अल्कोहल फॉर यू। नाउ लेट अस मूव टू बॉश लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप्स, अ वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड गिविंग यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, कैसे समझते हैं? आपके सामने स्क्रीन पे मैंने कुछ काम किया हुआ है, आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो ये फॉलो कर रहा था, जिसमें मल्टीपल टचेस मिलके हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, एंड ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन थी जिसमें हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा है स्टॉक, एंड रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भी दिखा। रिसेंटली अगर हम देखें इस स्टॉक ने क्या किया है, इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है उस इंपॉर्टेंट एरिया का जहां पर ये प्रीवियस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों फॉर्म कर चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक फ्रॉम लास्ट 2017, फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स टोटली एक डाउन ट्रेंड में था, एक पैटर्न फॉर्म करता था, हाई बनाता था, और जो अगला हाई बनाता था नीचे बनाता था। लेकिन अब इसने जो हाई बनाया है और जो हाई बनाता जा रहा है वो ऊपर बना रहा है, तो जो ये पैटर्न था वो ब्रेक होके चेंज हो गया है, एंड एक अप ट्रेंड हमें शुरू होता दिख रहा है। तो अगर आप इसमें एज अ ट्रेडर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग लो के नीचे, समवेयर बिलो दिस, बिकॉज अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो आपका एक डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो जाएगा एंड आपको इससे निकल जाना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप CMP पे बाय करके इसे
इसका टारगेट रखोगे इसका ऑल टाइम हाई दैट इज समवेयर अराउंड 26,000 रुपीज एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट करंटली ये चल रहा है, हम रेट देखते हैं इसका। करंटली इसका रेट है 17,735 एंड इसका ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा इन्वेस्टमेंट का 26,000। सो समवेयर 8 to 9,000 का आपको इसमें टारगेट मिल सकता है पर स्टॉक। सो दिस स्टॉक ऑल्सो लुक्स वेरी बुलिश सीइंग द वॉल्यूम ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम टोटली ड्राइड अप थी जब ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही इसने अप ट्रेंड शुरू किया है तो बड़ी वॉल्यूम में बाइंग होनी शुरू हो गई है। So this is Bosch for you. Let us move to the next stock, that is CDSL, सबका फेवरेट एंड a fundamentally good company again. आप देख सकते हो इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्लियरली बनता दिख रहा है और जो ये रेंज थी, रेंज छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है एंड अब बिल्कुल बंद होके रह गया। एंड ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे एज वेल वी कैन सी सम सीरियस वॉल्यूम कमिंग, जो पहले मिसिंग थी वो यहां पर हमें देखने को मिली, उससे पहले कुछ वॉल्यूम हमें यहां पे देखने को मिली एंड यहां पे तो बहुत ही अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली थी। तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता, जो ये बहुत जल्दी देने वाला है, और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है, जब तक ये ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। इन द कमिंग डेज आई एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देगा अच्छे वाला एंड एक अप मूवमेंट अपनी कंटिन्यू करेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो स्टॉप लॉस रखेंगे हम समवेयर ओवर हियर, बिकॉज ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और एक मेजर ट्रेंड लाइन भी है, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। इस स्टॉप लॉस को रखने से हमारे हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो दिस इज CDSL फॉर यू, अ फंडामेंटली गुड स्टॉक विच यू कैन ऑल्सो कीप फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक बताओ, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सारे के सारे स्टॉक्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हो। अगर कोई एक्सेप्शन होगी जो आप नहीं रख पाओगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, दैट इज फिनोलेक्स केबल्स। पहले हम इसे वीकली पे देखते हैं। वीकली पे आप देख सकते हो कि क्लियरली हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, दैट इज अ सिमेट्रिकल पैटर्न। जो हमारी वॉलेटिलिटी भी थी वो भी श्रिंक होती जा रही है, जो रेंज थी वो श्रिंक होती जा रही है एंड हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो ये जो डॉटेड लाइन है दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप देख सकते हो इस डॉटेड लाइन के ऊपर इसने पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस की हुई है, तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को एंड इस डॉटेड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसमें एंट्री नहीं बनाओगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पहला टारगेट इसमें मिलेगा 626। करंटली ये स्टॉक 488 का है, ठीक है, तो ये आपको 626 का पहला टारगेट मिलेगा एंड द सेकंड टारगेट विल बी 712, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। आप इसे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे एंड इस सपोर्ट के नीचे समवेयर ओवर हियर। द रीजन इज बिकॉज 2 बार ये डबल बॉटम बनाकर इसको तोड़ नहीं पाया है, तो जो एरिया 2 बार नहीं टूट पाया इतने डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद भी, तो दैट मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया जहां पे बायर्स की प्रेजेंस है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा दिस इज वेरी बुलिश, करंटली इन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस वॉल्यूम कमिंग। जो ये बाइंग हो रही है इस अप ट्रेंड के अंदर, दैट इज वेरी गुड एंड अ फंडामेंटली गुड स्टॉक। सो दिस इज फिनोलेक्स केबल्स फॉर यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, ग्रासिम, जिसमें हम CMP पर एंट्री बना सकते हैं। उसका रीजन ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक ये रेंज में था कुछ इस तरह से, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है। जो एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था मल्टीपल टाइम्स, अब वही एरिया एज अ सपोर्ट भी काम कर रहा है। मींस ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब ऐसा कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो वो स्टॉक ऊपर वाली साइड को ही मूवमेंट देता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस इसमें रहेगा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे समवेयर ओवर हियर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड ऑन द चार्ट्स। सो दिस स्टॉक आल्सो लुक्स वेरी बुलिश राइट नाउ विद अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। सो आपको बनी बनाई खिचड़ी जरूर मिल रही है, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस जरूर करना है बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग टिप। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज GRSE, दैट इज गार्डन रीच शिपयार्ड,
ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम को। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट हमें फ्रॉम 2020, स्टार्ट ऑफ 2020 और द एंड ऑफ 2019 भी देखने को नहीं मिला। एक ट्रेंड लाइन थी जो पिछले 2 साल से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, 2 साल से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया, उस एरिया को इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसमें आपको कंपेल नहीं कर सकता बिकॉज मुझे इसके फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये जो वॉल्यूम हमें नीचे देखने को मिल रही है ये इस शेयर को बहुत दूर लेके जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत स्टीम बाकी है, बहुत पेट्रोल बाकी है, इट कैन बी अ गुड मूवमेंट। आप डेली पे अगर आके भी इसको देखो तो इस कैंडल के अंदर आप वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम ये सुजेस्ट करती है कि इसमें बहुत भारी मात्रा में सेलिंग बाइंग हुई है, लेकिन रिटेलर्स को फंसाने के लिए ऑन मंडे हमें ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता दिख सकता है अप टू दिस लेवल। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है आप इसमें बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर रखोगे समवेयर अराउंड 210 एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 185। सो दिस स्टॉक ऑल्सो लुक्स वेरी बुलिश। मैं जितने भी स्टॉक्स आपसे शेयर कर रहा हूं सारे के सारे बुलिश स्टॉक्स ही हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बेरिश स्टॉक्स नहीं दूंगा बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। सो ये स्टॉक भी बहुत बुलिश लग रहा है इस समय। द रीजन इज वेरी सिंपल, एक बहुत लंबे टाइम का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेट अस मूव टू अ वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दैट इज गुजरात गैस लिमिटेड। आप देख सकते हो, इसे वीकली पे देखते हैं पहले टू अंडरस्टैंड दिस बेटर बिकॉज जो पिक्चर हम अगर देखें डेली पर हमें एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बना रहा है, लेकिन अगर हम इसे वीकली पे देखें तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती है। आप देख सकते हो कि यहां पे किसने ब्रेकआउट दिया था प्रीवियस हाई का, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा पुश फेज आया एंड अ पुल फेज। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनन इन एनी स्टॉक। ठीक है, नॉर्मल फिनोमिनन है, डाउन ट्रेंड नहीं शुरू हुआ इस स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री बनानी है तो वो सीएमपी बना सकता है इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करने के बाद, लेकिन ये एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब समझते हैं फॉर ट्रेडिंग क्या करना चाहिए। फॉर ट्रेडिंग हमें एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना जरूरी है एंड उसके बाद द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस एरिया का दैट इज 673 का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। रीजन समझते हैं क्यों, बिकॉज जब भी ये स्टॉक नीचे जाता है उसके बाद ये पुल फेज देता है, देन नीचे जाने के बाद पुल फेज देता है। सो वी वांट कि ये पिछला जो पुल फेज है इसका ब्रेकआउट मिले सो दैट ये पैटर्न जो बनवा था यहां पर ये ब्रेकआउट होके एक अप ट्रेंड की शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है। सो गुजरात गैस सीम्स टू बी वेरी बुलिश राइट नाउ because it is taking support at that area which was working as a resistance earlier. So this is called change of polarity. ठीक है, चेंज ऑफ पोलैरिटी होने की वजह से यहां पे एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है हमें एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो राइजिंग। ठीक है, आप देख सकते हो इमीडिएटली एट दिस सपोर्ट वॉल्यूम वाज ऑल्सो गुड। सो दिस इज ऑल्सो बुलिश स्टॉक राइट नाउ बिलोंगिंग टू द गैस सेक्टर। नाउ लेट अस मूव टू वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स दैट इज लार्सन एंड टुर्बो। ये आपके इन्वेस्टमेंट में होना ही होना चाहिए बिकॉज इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड करंटली ये आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप इसे देखो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप देख सकते हो, मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई थी, आप देख सकते हो कि सिंस 2009 ये स्टॉक एक रेंज में था, एक चैनल में था, चैनल वाइड होता जा रहा था एंड इज फाइनली इस स्टॉक ने यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। सो फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स जो एक चैनल फॉर्म कर रहा था 10 साल बाद हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला एंड द गुड पार्ट इज, अब इसे डेली पे समझते हैं, एंड द गुड पार्ट इज इस चैनल को ब्रेकआउट देने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, अंदर जाने की वापस कोशिश की बट फेल्ड एंड जिस वॉल्यूम से अभी अब दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है तो ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है पोर्टफोलियो के अंदर तो प्रॉफिट बुकिंग का मत सोचना, मत बेचना इसे, कीप इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड कीप राइडिंग द प्रॉफिट्स, एंजॉय द प्रॉफिट्स, डोंट सेल इट राइट नाउ। ठीक है, अगर ये नीचे जाता भी है तब भी मत इसे बेचना बिकॉज अगर ये नीचे जाएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ठीक है, सो एक अच्छी मूवमेंट आ रही है हमें। स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस लो के नीचे फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस समवेयर अराउंड 1636 का लेवल, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और हम इसमें सीएमपी पे एंट्री बना सकते हैं
अगर ये स्टॉक इस लेवल तक भी नीचे आता है, मींस इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने आता है, तब भी हम इसमें और फर्दर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो सारी की सारी एंट्री इस जगह पे मत लो, टेक 30 to 50% एंड बैलेंस अगर ये नीचे आता है तब इसमें बैलेंस क्वांटिटी उठाना अपनी। सो दिस इज L&T। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड लास्ट स्टॉक फॉर टुडे, दैट इज प्रिंस पाइप। अगेन अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। अभी तक जो भी स्टॉक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हो अगर आपको इसके फंडामेंटल्स पे कॉन्फिडेंस है। मेरे पास ये सारे के सारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं एंड आई ऑल्सो कीप ऑन ट्रेडिंग इन देम। अगर आप देखो, इसे वीकली पे समझते हैं। अगर आप देखो वीकली के ऊपर इट्स फॉर्मिंग अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका हमें ब्रेकआउट बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट कंफर्मेशन इज दिस, दैट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। सेकेंड कंफर्मेशन समझते हैं हमें कब मिलेगी। आप देख सकते हो ये एक एरिया था जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फ्रॉम द लास्ट 4 times इट हैज वर्कड एज अ रेजिस्टेंस। तो जब तक ये एरिया ग्रे एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे। और यहां पे हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल सकता है एंड सेम उसी जगह से हमें एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रही है, एक वापस की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक फंडामेंटली गुड है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो जब तक ये स्टॉक 780 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता हम इसमें बाय नहीं देखेंगे। और अगर ये 780 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया के नीचे, बिकॉज ये एक मेजर सपोर्ट है इसकी लास्ट वाली। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो ये नीचे की तरफ हमें 632 पे भी मिल सकता है। तो हमें बढ़िया रहेगा कि हम यहां पे एग्जिट कर लें, और अगर यहां पे हमें एंट्री मिलती है तो हम यहां से फिर से एंट्री देखने की कोशिश करें। ठीक है, सो दिस इज प्रिंस पाइप, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट ओनली आफ्टर 780। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज SBI कार्ड्स। ये भी बहुत लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन करंटली इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ड्रॉन आप देख सकते हो एक बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम मार्च 2021। एक बड़ी रेंज है हमारे पास, लेकिन इस रेंज के अंदर एक छोटा सा अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसने लो बनाया, उसके बाद जब इसने दोबारा लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाए, एंड सिमिलरली जो अब लो बना रहा है वो उस पिछले लो से ऊपर बना रहा है। सो एक अपवर्ड मूवमेंट हमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, मींस 1160 के अबव हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, हम इसे बाय नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे रडार में रखेंगे बिकॉज वॉल्यूम हैज ऑल्सो स्टार्टेड पंपिंग इन। ठीक है, वॉल्यूम आनी शुरू हो गई है हमारे पास इस रेंज के अंदर। सो देयर आर सम पीपल हु आर बाइंग दिस स्टॉक, लेकिन आप इसे तब बाय करोगे जब ये इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज देयर आर एवरी चांसेस कि इस रेंज को दोबारा टच करके नीचे चला जाए। सो दिस लुक्स वेरी बुलिश। आपको इसे अपने रडार में रखना है, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, बिकॉज जितनी बड़ी कंसोलिडेशन है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस चैनल का भी, तो इसकी अपवर्ड मूवमेंट बहुत अच्छी होने वाली है एज पर माय एनालिसिस। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रॉफिट जो भी देगा हमें स्टॉक, वो हमें स्टॉक से लेना है। So it's all about patience, keeping the stock in your radar and continuously monitoring it. Last stock is SKF India. Obviously, this stock is also very bullish. That's why I'm sharing with you. आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे एक प्रीवियस हाई था जहां से हमें थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिली। आफ्टर दैट एंड अगेन एन अपवर्ड मूवमेंट हैज स्टार्टेड एंड एक फ्रेश हाई बनाया इसने, ऑल टाइम हाई। इस कैंडल के अंदर हमें एक अच्छी वॉल्यूम भी देखने को मिली है, जो पीछे हमें मिसिंग दिख रही थी वो दोबारा से वॉल्यूम इसमें आनी शुरू हो चुकी है। सो एक वॉल्यूम बेस्ड हमारी एंट्री रह सकती है इसके अंदर। यहाँ पे हम CMP पे एंट्री इसमें ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस एरिया के नीचे। ठीक है, क्यों रहेगा इस एरिया के नीचे? बिकॉज एक अच्छी सपोर्ट है। इतने दिनों तक ये स्टॉक इस एरिया को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, तो हम इस एरिया के नीचे समवेयर ओवर हियर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड उसको ट्रेल करते जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज इस स्टॉक को ट्रेल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाता है एंड नीचे आकर यहां पे एक सिमिलर दिस काइंड ऑफ लो बनाता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस एरिया के नीचे कर देंगे। उसके बाद अगर ये और ऊपर जाके फिर एक लो बनाता है तो हम स्टॉप लॉस को यहां कर देंगे। जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा हम स्टॉक से नहीं निकलेंगे। नेवर सेल योर हॉर्सेस एंड दिस अप्लाइज टू एवरी अदर स्टॉक जो मैंने आपसे शेयर किया अभी। So this is all about the index analysis
and 12 very good trading opportunities which you should not miss. बनी बनाई खिचड़ी मिल गई है आपको. Now try analyzing on your part और देखो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल लगती हैं. अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट एवरीवन कैन अर्न एंड ऑल्सो लर्न. इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. I'll see you in the next similar kind of video with a lot of analysis and lot of trading ideas. Till that time, bye bye, take care, keep watching our videos, keep watching our channel and make good profits. Bye bye, take care.